کراچی کا جو ہم نے ذکر کیا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کراچی گئے، پھر وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا جہاں وہ کرنا چاہتے تھے، وہاں نہیں ہوا. سارا ماجرا ہوا کیا ہے؟ محمد اشد ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. فریدی صاحب جب وہاں گئے ہیں تو وہاں ان کا بڑا استقبال تو بہت ہوا. اجرک پہنائی سعید غنی صاحب نے اجرک بھی پیش کی، سندھی ٹوپی پہنا دی، استقبال کیا، ٹوپی پہنائی سندھی، اجرک بھی ان کو اڑائی گئی اور بڑا اچھا تاثر پھیلا. اور یہاں تو تجزیے شروع ہو گئے کہ جناب دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا اب ہو رہا ہے، رشتہ ناتا ہو رہا ہے، اور مقتدرہ جو ہے اب مسلم لیگ نون کو چلتا کرے گی. کیا لوگ خبریں اڑانے لگے اور بیچ میں معلوم ہوا پھر کھنڈت پڑ گئی. ویسے ایک بات ہے، میں ابھی پوچھتے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں باغ جنا جو ہے مزار قائد اعظم کے پاس جو باغ، وہاں جلسہ کرنا ہے ہم نے. اب انہوں نے کہا یہ جلسے کی اجازت بر وقت نہیں ملی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، مزار قائد اعظم کا انتظام جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اس کا جو باغ ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری، وہیں سے اجازت ملتی ہے، تو وہیں سے اجازت ملتی ہے. اس میں کوئی تاخیر ہو گئی، انہوں نے کہا ہم جلسہ نہیں کریں گے. ان کا سر تاخیر پتہ نہیں کیسے ہو گئی، ایک دن پہلے اجازت مل گئی تھی ان کو، ایک روز پہلے. پھر ہم روڈ شو کر لیں گے. اب اس سے جو کچھ بھی ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی اور جو ان کا ہے رومانس جو شروع ہوا تھا وہ پہلے ہی حلے میں وہ دھڑام سے نیچے گر گیا، دھڑام سے نیچے گر گئی عمارت. وہ شیخ چلی نے جو خواب دیکھا تھا نا، کہ وہ خواب دیکھا کہ انڈے بیچوں گا تو پھر مرغیاں خریدوں گا تو پھر یہ جناب بکریاں لوں گا، بکریاں بیچوں گا تو پھر گائے لوں گا، گائے بیچوں گا تو پھر اونٹ لوں گا، اور پھر یہ بات میں اس میں سواری کروں گا اور اس طرح چلوں گا. اور جو اونٹ کی سواری شروع کی تو معلوم ہوا کہ جو انڈے کی ٹوکری تھی اس پہ پاؤں پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے، بٹا بیٹھ گیا، خواب چکنا چور ہو گیا. صحیح ہے. تو اب یہ بتائیے اشد کون ہے؟ اشد محمد اشد ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اشد صاحب آپ بتائیے مجھے کہ آپ جلسہ گاہ میں موجود تھے باغ جنا میں خود؟ جی بالکل، ہم نے ہوا کیا ہے وہاں پہ پورے دن کوریج کی. دیکھیں جس طریقے سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، سلمان صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اجازت کا حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو 6 جنوری کو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو تھا وہ ایک خط لکھا گیا ضلع انتظامیہ کو کہ وہ 11 تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں باغ جنا میں. اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ 10 تاریخ کو کی شام کو ہی اجازت نامہ جو تھا وہ ان کو دے دیا گیا. سندھ حکومت کا یہ موقف تھا کہ ہم نے وربلی ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ کو جو ریٹن میں جو آپ اجازت نامہ مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ تیاریاں جاری رکھیں. لیکن جو ہوا یہ کہ پہلے تحریک انصاف جیسے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا تو پھر انصاف جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم بہت دیر کر دی ہے اجازت نامہ دینے میں، لہٰذا اب ہم مزار قائد کے بالکل سامنے جو روڈ ہے جو وی آئی پی گیٹ کے ساتھ سڑک ہے وہاں پر اب جلسہ کریں گے، جس کے فوری بعد پھر جو وزیر انجار ہیں کہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کبھی پھر بیان آیا کہ سڑک کے اوپر کہیں کرنے کی اجازت نہیں رہے گی، جہاں کی اجازت نامہ مانگا. پھر یہ بتائیں آگے پھر کیا ہوا، اس رات کو کیا ہوا؟ مارا ماری کیا ہوئی پھر جب اس کے بعد پھر ایک تحریک انصاف کی طرف سے یو ٹرن ہوا، اور میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم باغ جنا میں ہی جلسہ کریں گے. لیکن رات گئے جب وہاں پہ ان کی ٹیم کے لوگ، وہاں پہ کچھ کارکنان وہاں پہ پہنچے تیاریوں کے لیے، تو وہاں پر پولیس کی جانب سے بھی ایکشن ہوا. جب ہماری سندھ حکومت کے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا ایک کہنا تھا کہ قواعد و ضوابط کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کو بتا دیا گیا تھا، 20 سے زائد پوائنٹرز تھے جس پر ان کو قائل کیا گیا تھا، لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئی تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، ان کی تنظیم کی جانب سے، جس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. پولیس نے کیا کارروائی کی؟ کوئی لاٹھی چارج کیا؟ ان کا سامان ان کا اس کو قبضے میں کیا یا ان کو اندر آنے کی اجازت دی؟ کارروائی کیا کی پولیس نے؟ تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پر رات گئے باغ جنا میں پولیس پہنچی، اور وہاں پر پولیس کی جانب سے ان کے کارکنان کو حراست میں لیا گیا. اور پولیس کیوں پہنچی وہاں؟ اس کو کیا ضرورت تھی پہنچنے کی؟ جب اجازت دے دی گئی تھی تو وہ اپنا جلسہ کرتے، پولیس کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟
बिल्कुल यही बात सिंध हुकूमत से भी जब की गई तो सिंध हुकूमत का जो मौकफ सामने आया, उनका ये कहना है कि जब तहरीक इंसाफ की जो पूरी टीम थी, जो उनके रहनुमाओं से बातचीत पहले ही हो चुकी थी, उनको कुछ चीजों पर बताया गया था कि रियासत के खिलाफ जो नारेबाजी रियासत तो बेचारी अभी कोई नारा नहीं लगाया, अभी तो पहुंचे नहीं है वहां, पुलिस पहले पहुंच गई उनसे। देखिए, जब ये जिस दिन जो सीएम केपी यहाँ पर पहुंचे हैं कराची में, उसके बाद ही जब ये एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस तक और उसके बाद फिर ये वापस बागे जिना गए और फिर कराची प्रेस क्लब गए, वहां पे भी जो था मीडिया से खिताब किया। इस दौरान के जो इनका ये सफर था उसमें कुछ इस तरह की चीजें हुई जिसके ऊपर सिंध हुकूमत को एतराजात थे और यही बयान सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया। अब ये बताएं, ठीक है वो तो आ गया, इंक्वायरी ये कहा गया नहीं, सिंध हुकूमत ने अगर कहा उनको एतराज था तो वहां जलसा पर जलसे की इजाजत मनसूख कर देते। इजाजत भी मनसूख नहीं की, पुलिस भी भेज दी। जी बिल्कुल, यही जो थी कुछ बातें थी जिसकी जानिब से हमने भी सिंध हुकूमत से इस बारे में बार बार उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि ये सब चीजें होने के बावजूद यकीन दहानियां पीटीआई की जानिब से कराई जाती। यहाँ पे मैं एक चीज का जिक्र बिल्कुल जरूर करना चाहूंगा कि जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया और ये हमने खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है सिंध में, अगर मैं खुसूसी तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा से जो है वो ज्यादा मजबूत नहीं रहा। चाहे जब तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी उस वक्त भी, अब ये देखते हमने ये चीज ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ पे उनका जो तंजीमी ढांचा है वो कमजोर है, क्योंकि कोई मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बातें जो थी वो इंतजामिया से की जा रही थी। कोई रहनुमा जो कोई कराची लेवल के रहनुमा थे वो कुछ और बात कर रहे थे, जो सिंध लेवल के रहनुमा है, जो सदर है, वो कोई और बात कर रहे थे। वो इतना धाड़ते हैं टीवी स्क्रीन पे आके, शमीम नकवी साहब हैं, इतने पुराने माशाल्लाह उनके लीडर हैं, ऐसे ऐसे लोग वहां मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल शामी साहब, ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कराची लेवल पे जो रहनुमा थे, जो तकरीबन बहुत सारे इनके रहनुमा थे जो कि सिंध हुकूमत से जो थे वो मुस्तकिल राब्ते में थे और अलग अलग तरीके से उनसे बात हो रही थी। तो ये कम्युनिकेशन की में भी इस वजह से जो था वो गैप था, और जो कारकुनान तक मैसेज था जिस दिन जलसे की अगर मैं आपको बात करूं, जब ये आंख मचोली सुबह पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान जारी थी और फिर एकदम से पुलिस हमने देखा वहां से हटी है, तो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, इसमें बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग जो थे वो बागे जिना में पहुंचे। लेकिन फिर वही बात है कि जब वहां पर कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था कि कब यहाँ पे सीएम केपी जो है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ खिताब करेंगे, तो हमने देखा कि वहां पे जो कारकुनान थे वो टोलियों की शक्ल में घूमते रहे। सर्द मौसम तक, कल कराची में ठंड भी बहुत जबरदस्त ठंड थी, तो जो कारकुनान थे वो उसी तरीके से तितर बितर होने शुरू हो गए। और जब सीएम केपी पहुंचे हैं नुमाइश पर, तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि 70 से 75% जो लोग वहां पर जमा थे वो उस वक्त तक वहां से जा चुके थे, क्योंकि उन तक वहां पर कम्युनिकेशन का कोई तरीका ही नहीं था। वो वहां पर आए, कुछ देर उन्होंने वहां पे खिताब किया और फौरन ही 5 से 10 मिनट के अंदर ही वहां से सारा जो रश था, क्योंकि अगर जो फौरन खत्म हो गया उसके आगे उनका जो काफिला था वो लियारी की तरफ गया और फिर बाद वो दोबारा MWM के दफ्तर पर आया, वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। तो इस सारे सिनेरियो में जो आपको बता रहा हूँ कि जो असल मसला जो हमने देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो यही था कि वो इनका तंजीमी स्ट्रक्चर जो है, जो तंजीमी ढांचा है, जो नज्म ज़ब्त है, उसका हमें फुकदान जो था वो देखने में आया कि जिस वक्त पब्लिक बहुत ज्यादा थी वहां पे शाम के वक्त जब लोग वहां पर पहुंचे, जो टाइम दिया गया था, अगर केपी उसी शाम के टाइम 4 से 5-6 बजे तक के दरमियान आते तो वो एक जो रश था वो देखने के काबिल था बिल्कुल। लेकिन उसमें हमने देखा कि वहां पे किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन जो थी वो कारकुनान। सवाल सुने शामी साहब का। ये बताएं कि जो खाने की दावत दी थी, ये मुलाकात की दावत थी मुराद अली शाह साहब की तरफ से, वो मनसूख कर दी, मुराद अली शाह साहब ने वापस ले ली। अच्छा, ये भी बड़ा ये चीज जो थी, जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो शेड्यूल जारी हुआ उसमें उनकी तरफ से ये दावा जो था वो जारी किया गया कि कहा गया कि जो है 11 तारीख को वजीर आला सिंध से 12 तारीख को वजीर आला सिंध से मीटिंग होगी उनकी, और वो सुबह 9:30 बजे का उसका वक्त दिया गया। लेकिन हमने सिंध हुकूमत के लोग से बात की
वजीर आला हाउस में भी हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि उनकी जानिब से कोई भी इस तरह की मीटिंग जो थी वो शेड्यूल नहीं की गई थी। तो ये जो भी बात आई सामने कि वो यही बताया गया कि यहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से भी कोई वो नहीं किया गया था। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात जो थी जरूर बताई गई थी कि वजीर आला सिंध के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है उनका ये क्लियर स्टांस है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई भी यानी मीटिंग मुलाकात तय नहीं हुई थी, तो मतलब और उन्होंने दावा कर दिया कि मुलाकात होगी, मतलब इसका मतलब मुलाकात की दावत वापस नहीं ली गई। तो फिर माजरत की बात कहाँ से सामने आ गई कि जी माजरत कर रही है उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने मुलाकात से? देखिए, हमने कोई भी इस तरह की जो खबर है वो हमने जो थी उसको वो नहीं किया। सिंध हुकूमत को कम अज कम कि हमने उसको कोट करके हमने खबर को वो दिया, बताया हो अपने नाज़रीन को कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो माजरत कर ली गई है मुलाकात की, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से हमने जो भी हमने बातचीत की, जो वज़रा से भी हमने बातचीत की, तर्जुमान से भी बातचीत की, किसी ने भी जो था इस हवाले से तस्दीक नहीं की। आप जो कुछ हुआ है सिंध हुकूमत बरी ज़िम्मा है इससे, आपके ख्याल में? जो बयानात सिंध हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं, जो उनके वज़रा से हमारी बात हुई, उससे तो इस मुलाकात के हवाले से यही खाली इस मुलाकात की अगर आप स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसका तासुर इसमें यही जाता है। और जो वजीर आला हाउस पे भी हमने वहाँ पे बात की, तो वहाँ से भी इस मुलाकात की हमसे कोई तस्दीक जो थी वहाँ पे उनका नहीं की गई कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह का कोई। अजीब बात है भाई, आजकल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया ने आफत बर्पा कर रखी है। आप सारे लोग जो हैं माशाअल्लाह दर्जनों सैकड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं, फिर सिरा नहीं मिल रहा कि किसने मुलाकात करनी थी, किसने वादा खबर किया था, कहाँ से निकली, किसने वापस ले लिया। और ठीक, शुक्रिया सर, मैं अदा कर दूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद आपका। एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी हुआ नासिर हुसैन शाह साहब से कि आपने इजाज़त देने से पहले इजाज़त ली थी? उन्होंने कहा हम तो चेयरमैन साहब हैं और जरदारी साहब हैं, हाँ जी, उनकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकते थे? बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि पहले तो टोपी पहना दी और फिर टोपी उछाल दी। ओए होए होए। अब एक तो मुझे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, अल्लाह ताला ने सलामत रखे, और भाई आपको वजीर आला, जो आज तक तो मैंने किसी वजीर आला को इस तरीके से सूबे किसी का दौरा करते नहीं देखा। अच्छा, कि वो तूफानी दौरा कर रहा हो, उसने एक कैंपेन चला रहा हो। स्ट्रीट मूवमेंट थी ना वो, जो लाहौर में कड़वाहट मिली। हाँ, ये पार्टी के रहनुमा जो हैं, जो उनको करने चाहिए। अच्छा, जो हुकूमत यानी जो हुकूमत में है, ये उनके करने के काम नहीं है। खान साहब ने उनको सौंप दिए। अब वो अगर जाते इत्मीनान से, अगर वजीर आला ना होते, जाते, कोई रिसेप्शन होता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, अपना आराम से एजेंडा होता कि किस चीज पे बात करनी है। अब वहाँ ये है कि वो वजीर आला भी हैं और इस तरीके से पहुंच रहे हैं जैसे कोई हल्ला बोलना है। सही। अब उन्होंने और वो जो मेजबान है, पहले तो उन्होंने दाद वसूल कर ली, अच्छी तरह वसूल कर लिया, रिसीव कर लिया, और उसके बाद फिर वही टाइम फिश। अब समझ नहीं आ रहा। अभी तो नासिर हुसैन शाह साहब एक मैं देख रहा था प्रोग्राम में, कह रहे थे कभी हम तहकीकात करेंगे। अब हाँ जी, वो कह रहे हैं इंक्वायरी कमेटी बना दी आगे, यहाँ हुआ क्या, बाग़े जना में हुआ क्या है, बिल्कुल, कि नहीं मतलब किसका कसूर था। एक और भी शामिल साहब एक यानी तासुर देने की जो कोशिश की जा रही है जो खिलाफ हैं पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि माजी में यहाँ बड़े बड़े जलसे हुए हैं और एमक्यूएम ने किए, खान साहब ने किए, तो यहाँ तो लोगों को भरना बड़ा मुश्किल होता है। पीएसपी का जलसा हुआ था, लोग नज़र कम आते हैं, उन्होंने कहा यहाँ मत करो, सड़क पे कर लो, वहाँ ज़्यादा रश हो जाएगा। ये तो अपना एक ख्याल है मुखालिफिन का, उनके हाँ एक जो मुखालिफिन है उनका, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का मसला होता। लोग तो इकट्ठे हो जाते हो, कह भी रहे हैं कि लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि ये सारा जो मामला है हुआ क्या है। जब इतनी फराख दिली का मुजाहरा था, वो तंग दिली में बदला कहते, पुलिस का काम क्या था भाई? आपने इजाजत दे दी है, उन्होंने जलसा करना है, पुलिस क्या कर रही वहाँ? ठीक है।